starts from 1 onward. All right, here there are multiples of 2, 3 and 4. all right, and now you have to understand that multiples जो इन सब के लिखे गए हैं वो सारे multiples जो हैं सबसे पहला फर्स्ट कॉमन जो है वो देते हैं नंबर मल्टीपल, वो क्या है 12 है। नाउ इस 12 का इंपॉर्टेंस है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस 12 आई एम टेलिंग यू। क्या कोई दिक्कत नहीं होगी, एसी चला दो, उसको बंद कर दो। All right, try to understand what I'm saying. What is the importance of this number 12? That 12 is the first number that gets divided by all these three. I'm telling all these three, 2 as well as 3 as well as 4. तो तुम बोल रहे होगे कि इसका इतना भी ज्यादा क्या इंपॉर्टेंस है, और ऐसा क्या है जो सीसैट में बार बार आता है जो एलसीएम एचसीएफ इतना फेमस होता है। एचसीएफ उतना फेमस नहीं है, एलसीएम फेमस है। एलसीएम का केवल एक मॉडल क्वेश्चन जो है वो सबसे ज्यादा फेमस है, सबसे ज्यादा कॉमन है, लगभग हर एक साल आता है, मान के चलो। अब मैं यहां पे अगर बोलूं फर्स्ट क्वेश्चन, प्लीज अंडरस्टैंड, फाइंड द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 2-digit number divisible by 2, 3 and 4 all. Am I correct? Now हमको क्या पता करना है, लार्जेस्ट 2-digit नंबर एंड स्मॉलेस्ट 2-digit नंबर। अब इसका सॉल्यूशन पार्ट यहां पे शुरू होता है। लार्जेस्ट 2-digit नंबर इज व्हाट, प्लीज टेल मी। दिस इज 99 and smallest number is what, please understand what I am telling you, this is 10. So what is the smallest 2-digit number which is divisible by 2 as well as 3 as well as 4? It is what? Smallest is already LCM, that is 12. Now it also gives you one significant feature like LCM जो कि आया है 12 n ले लो, this is natural number. For example, 12, then 24, then 36, then 48, then 60, ... All these numbers will be divisible by 2 as well as 3 as well as 4. Are you understanding this or not? Now, the thing is, what is the largest 2-digit number that is divisible by all these? तो तुम बोलोगे सर 12 का मल्टीपल सीधे निकालो ना, आंसर आ जाएगा। This is the right answer. So you divide 99 by 12. You get 12 8 ja 96, and here is the remainder, that is 3. So 99 minus 3 is that very number, largest 2-digit number that is divisible by 2 as well as 3 as well as 4. Am I correct or not? Please tell me yes or no. Are you all there? Yes, sir. All right. So I have just solved this very number. Largest number will be 96 and the smallest number will be 12. This is one feature. Now the second thing is क्वेश्चन कैसे आएंगे, प्लीज देखिए। अभी जो है क्लास रिकॉर्डेड है, क्लास आपके पास जाएगा अभी बस यहाँ पे कंसंट्रेट करो। जो भी रफ वर्क कर रहे हैं, फेयर वर्क कर रहे हैं, करते रहना, करते जाओ साइमल्टेनियसली, नो प्रॉब्लम। इसका दूसरा क्वेश्चन सुनना बहुत ध्यान से। फाइंड, क्वेश्चन इज फाइंड लार्जेस्ट 3-digit number divisible by 2, 3, 4, but giving 1 as remainder in each case. Very simple thing. Now this question is what? This question is regarding largest 3-digit number which when divided by 2, 3 and 4 gives what? 1 as remainder. Now I have already told about these things when I was talking about factors and multiples in the class also, but right now I am doing it using the color green only. Please see over here. What is the largest 3-digit number? That is 999. Just divide it by LCM because this has been LCM. This is LCM, this is LCM. All right. And this is coming out to be 12 8 ja 96, 3 9, and this is 12 3 ja 36, again 3 remainder.
So what is the largest 3-digit number that is divisible by 2 as well as 3 as well as 4? Answer is 999 minus 3. Am I correct or not? So largest number to 996 hoga, but largest 3-digit number which when divided by 2, 3, 4 gives 1 as a remainder. So you have understood that 996 is completely divisible. So 996 plus 1 is the answer of this very question. Am I correct or not? 997. Yes, 997 is the answer of that very question. Now please do the fair work completely. Two things I have just shown to you. If you are taking screenshot, well, good to go. But you just understand two simple questions, simple looking question जो कि 10th क्लास में भी सब लोग करते हैं, उस क्वेश्चन को हमने समझा है. अगर यहीं पर मैं बोलूं, सबसे पूछूं कि 12 से नहीं, 2, 3 एंड 4 से डिविजिबल 4 डिजिट की लीस्ट नंबर क्या है, तो ये भी हम लोग कर चुके हैं. आंसर क्या आएगा? 996 प्लस 12. वेरी सिंपल. इट मींस द आंसर विल बी 1008. Am I correct or not? So 1009 will be the first 4-digit number that is divisible by 2, 3, 4, but giving 1 as remainder in each case. तो ये सर सारी चीज हम लोग समझे हैं ऑलरेडी पहले भी. जी बोलिए. सर 999 डिवाइड बाय 12, ठीक है, 997 आ गया हमारा आंसर. तो ऐसे ही आपको हमें 100 से करना है, मतलब 12 डिवाइड बाय 100, इट विल आई थिंक 1 सेकंड सर. 100 क्यों? 97 100 क्यों कर रहे हो? जस्ट बिगेस्ट लेना है. बिगेस्ट नहीं लेना है. यहाँ पे तो बोला है लार्जेस्ट 3-digit नंबर ना, तो लार्जेस्ट 3-digit नंबर इज कमिंग आउट टू बी 997. मैं तो ऐसे वर्बली बोला. अगर क्वेश्चन ये रहता व्हाट इज द लीस्ट 4-digit नंबर, लीस्ट 4-digit यानी इसके बाद वाला संख्या जिसमें जब 2, 3, 4 से डिवाइड किया जाए तो 1 रिमाइंडर आएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा? 997 प्लस 12. एक बस एलसीएम उसमें जोड़ दो, ये आ गया वो संख्या. Am I correct or not? 1009 is that very least 4-digit number. Have you got it, ma'am? यस सर. अब आप बोलोगे कि सर सीसैट का सवाल दीजिए, डायरेक्ट सीसैट का सवाल दीजिए. सीसैट किस तरह सवाल पूछता है? अब सीसैट का सवाल सुन लो, तुमको भी समझ में आ जाएगा क्या है. सीसैट बोलेगा कि 1 बेल इज रिंगिंग आफ्टर एवरी 2 minutes. Second bell is ringing after every 3 minutes. Third bell is ringing after every 4 minutes. Then please tell me, in the next 24 hours, the bell will be ringing together in how many different in how many times they will be ringing together. इस तरह के क्वेश्चन आते हैं. तो अभी हम लोग करते हैं. अब उसको करने से पहले एलसीएम निकालने का तरीका जो बच्चे में जानते थे वही हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे रिवाइज करेंगे. For example, CSAT question this is: 5 bells ring after every 2, 3, 4, 5, 10 seconds respectively. Please write it down. Seconds respectively. All of them run together at टाइम बता रहा हूं 6:45 PM डेटेड. आज तारीख कितना है मैं भूल गया, 30th October. Find how many more time they will ring together in next 6 hours. Now understand. First of all, you see the question. Now I'm telling you, there have been at least 10 questions, this type question, that has come across in the UPSC realm up till now. All right? So एकदम ध्यान से देखो. अभी इस क्वेश्चन में कह क्या रहा है वो जरा ध्यान से देखो. 5 बेल है जो रिंग करते हैं आफ्टर एवरी वॉट
2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, 10 सेकेंड रिस्पेक्टिवली। इसके सॉल्यूशन पार्ट में आपको समझ में पहले ये आना चाहिए, 2 सेकेंड में करेगा तो 4 सेकेंड के बाद भी करेगा, 6 सेकेंड के बाद भी, 8 सेकेंड के बाद भी, 10 सेकेंड के बाद भी। एम आई करेक्ट? इसी तरीके से ये वाला 4 सेकेंड के बाद भी, 8 सेकेंड के बाद भी, 12 सेकेंड के बाद भी, लाइक वाइज। तो ये मल्टीपल्स हैं, तो हमें लोएस्ट कॉमन मल्टीपल ढूंढना है। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल विल बी द नंबर ऑफ सेकेंड जिसके बाद सब लोग साथ में बचेंगे। एम आई करेक्ट और नॉट? नाउ try to focus on the way LCM is getting calculated over here. So what is the thing? 2, 3, 4, 5, 10. लीस्ट पॉसिबल आपको प्राइम नंबर लेना है जिससे एटलीस्ट 2 ऑफ दिस नंबर डिवाइड हो। कम से कम छोटा से छोटा प्राइम नंबर लो जिससे कम से कम 2 नंबर डिवाइड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2 1 जा और 3 ऊपर से डायरेक्ट आ गया, दिस इज 5। ओके, अब 2 से हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। 3 से भी नहीं हो पाएगा, 5 से हो जाएगा। सबको डायरेक्ट नीचे उतारिए, 1 जा 1 जा, और कुछ नहीं हो रहा है। अब सबको मल्टीप्लाई कीजिए, 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 2। यस, करने दो मुझे। 5 2 जा 10, 3 जा 30, 2 जा 60। इट मीन 60 सेकेंड्स आ चुका है। इट मीन्स आफ्टर एवरी 1 मिनट द बेल्स विल बी रिंगिंग टूगेदर। दैट्स इट। इसी तरह का सवाल आज तक आते गया है। सो डू नॉट बॉदर अबाउट दिस वेरी फैक्ट। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, आफ्टर एवरी 1 मिनट है तो हमारा आंसर क्या है? दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। अगर मोर नहीं लिखा रहेगा तो 6 आवर का या कोई भी कैलकुलेट करना होगा तो उसमें फोकस करना लैंग्वेज ऑफ द प्रॉब्लम का। इसमें शायद ये भी बोलेगा कि शुरुआत में 6 बजे के शुरुआत में 6:45 PM पे अगर एग्जैक्टली बजा है तो आपको उसको भी काउंट करना होगा। तो जितने अभी आंसर आएंगे उसमें +1 करना होगा। तो ये लैंग्वेज पे ध्यान देना। अभी कहा गया है कि एक बार तो ये बच गया सब लोग साथ में। नाउ हाउ मेनी मोर टाइम्स? अगले 6 घंटे में, अगले 6 घंटे में जो है ये सारे 7 बजेंगे, यानी अगले 6 आवर्स, यानी ये वाला टाइम इंक्लूड नहीं करना है। फोकस ये रखना कि अगर ऐसे वर्ड दिए, मोर नहीं दिए रहे, या कुछ ऐसा वर्ड्स पूरा सब कुछ रहे जिससे ये प्रतीत हो रहा है कि हमें पता नहीं चल रहा है कि ये मतलब इंक्लूड करना है कि नहीं करना है, हमेशा ध्यान रखना। फिर से उस लैंग्वेज को पढ़ो। मोर वर्ड नहीं है तो शायद ये कह रहा है कि आपको इसको इंक्लूड करना है। गॉट इट? नाउ आई एम डूइंग द क्वेश्चन। आफ्टर एवरी 1 मिनट दे विल बी रिंगिंग टुगेदर। तो 6 आवर्स में, अब ये टाइम रेडिडेंट है, इसका कोई काम नहीं है। 6 घंटे बस याद रखो। 6 आवर्स में कितने मिनट होते हैं? 6 इंटू 60 मिनट। सो व्हाट इज द आंसर? 360 मिनट। देन इट मीन्स 360 times. This is the answer of the problem. So 360 times they will be ringing together in the next 6 hours time. This is the focus right now as far as the thing is concerned. Please see over here. Is it correct? Are you understanding? Yes, sir. Focus is on understanding the multiple strategy over here set by UPSC. All right, so listen to me very carefully. One more question I am going to give from CSAT. All right. कहता है कि 3 persons start walking together and their steps measure 40 centimeter, 42 centimeter, and person 1, person 2, person 3. All right. Every step कितना है? सर माइक लगा लो, आवाज नहीं आ रही। You are not audible. I'm sorry.
पर्सन 1, पर्सन 2 एंड पर्सन 3 आर देयर, ठीक है। एवरी स्टेप ऑफ 40 सेंटीमीटर ये लेता है, एवरी स्टेप 42 सेंटीमीटर का लेता है, एवरी स्टेप 45 सेंटीमीटर का लेता है। सी सैट क्वेश्चन दिस इज। कहता है व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस दे शुड वॉक सो दैट दे हैव कवर्ड द सेम डिस्टेंस इन कंप्लीट नंबर ऑफ स्टेप्स। मिनिमम डिस्टेंस traveled for them to get it completed in natural number of steps। इसका मतलब क्या है? अगर ये है कोमल, ऑल राइट, लिसन टू मी वेरी केयरफुली। कोमल हर एक स्टेप मान लो 1 मीटर का लेती है, मैं लेता हूं, मेरा नाम अमृतम है, मैं लेता हूं 0.5 मीटर का, एम आई करेक्ट? और मान लो कोई और है, कौन है? धीरज है, यस। धीरज जो है वो लेता है 1.5 मीटर का, एम आई करेक्ट? नाउ यू हैव टू डिटरमाइन कि ऐसा कौन सा डिस्टेंस है, ऐसा कौन सा डिस्टेंस है मिनिमम, जिसको तीनों की तीनों कंप्लीट नंबर ऑफ स्टेप्स में प्राप्त करेंगे। दिस इज द क्वेश्चन, ऑल राइट। कंप्लीट नंबर ऑफ स्टेप्स में वो डिस्टेंस होना चाहिए। तो ये क्या क्या करेगा? 1 2 3 4, ये क्या क्या करेगा? 0.5, फिर 1, फिर 1.5, फिर 2, गेटिंग और नॉट गेटिंग? ये कैसे करेगा? 1.5, फिर 3, फिर 4, फिर 4.5 लाइकवाइज। तो कहने का मतलब इसमें लोएस्ट कॉमन मल्टीपल लेना है, एलसीएम लेना है। व्हाट विल बी द आंसर? इन तीनों का एलसीएम। एलसीएम का एक और फॉर्मूला शॉर्ट ट्रिक लिख लेना, एलसीएम ऑफ ए बाई बी, सी बाई डी, E by F dot dot dot. This is equal to LCM of A comma C comma E divided by HCF of B comma D comma F. समझ में आया? ये एक फॉर्मूला है, मैं भी आऊंगा HCF पे, घबराओ बिल्कुल मत। इसके बाद एक और फॉर्मूला क्या है? HCF of A by B comma C by D dot 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 is equal to HCF of A comma C dot 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 numerators divided by LCM of B comma D dot dot dot। तो अभी इसका आंसर क्या आएगा? ये 1.5 सबसे बड़ा है, इसका मल्टीपल लो। 1.5 में देखो ये कंप्लीट नंबर, कमल जो है कंप्लीट नंबर ऑफ स्टेप्स नहीं चलती है, लेकिन ये जैसे ही 3 पे आएगा, 3 मीटर इज द लीस्ट डिस्टेंस, जिसको ये भी कंप्लीट नंबर ऑफ स्टेप्स में प्राप्त कर लेगा, अमृतम भी कंप्लीट नंबर ऑफ स्टेप्स में प्राप्त कर लेगा, और कमल भी कंप्लीट नंबर ऑफ स्टेप्स। तो वो क्या आया है? वो एलसीएम आया है। सो दिस क्वेश्चन इज ऑल अबाउट व्हाट? एलसीएम। एलसीएम ऑफ 40, 42, 45 निकाल लो, वही आंसर है। 40 ये रहा, 42 ये रहा, 45 ये रहा। 2 से करो 20, 21, 45 आया। अगेन 2 से तो होगा नहीं, 3 से होगा ना? 20 आया, 3 7 जा एंड 3 15 जा। और कुछ हो रहा है क्या? 3 से डिविजिबल नहीं है। फिर आपका 5 से, हाँ 5 से डिविजिबल है, यस। चलो करो, 5 4 जा, 7 जा एंड 3 जा। 2520 सर। ऑल राइट, 2520 आया ना? जो भी आया यस उतना सर। सेंटीमीटर आंसर है। इफ 2520 हैज कम ट्रू, then 25.20 सेंटीमीटर, 20 मीटर इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। वो देख लेना आप लोग खुद से। यस, आंसर करेक्ट है 25 मीटर एंड 20 सेंटीमीटर। 25.20 is the answer of the question. Very good evening, Payal. Very good evening. सर ये पॉइंट्स में कैसे आया? अभी तुमने बताया ना, तुम ही ने बताया ना, 2520 आया। 2520 क्या आया? सेंटीमीटर में आया, और 100 से डिवाइड करेंगे तो मीटर में आ जाएगा, बिकॉज 1 मीटर इज इक्वल टू व्हाट? 100 सेंटीमीटर। वेरी टैबली अंडरस्टूड ना? ओके सर। चलो आगे चले।
Shall we go ahead? Yes, sir. All right. Yes. Now please understand. ये एक सर्कुलर, सॉरी, ये एक रेक्टेंगुलर जो है वो प्लॉट है, मैं दे रहा हूं. सपोज दिस इज 80 and this is, or this is suppose 90 and this is suppose 75. What? इसको मान लो 75 मीटर मान सकते हो, नहीं, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर ही मानो, ठीक है. और इसको फीट मान लो, सबसे अच्छा. फीट, फीट. अभी सब लोग देखोगे कोई कुछ करेगा नहीं. नाउ कहा जा रहा है दैट यहां टाइलिंग करनी है. टाइल्स मस्ट बी स्क्वायरल शेप. स्क्वायर शेप का टाइल होना चाहिए. स्क्वायरल, आइडेंटिकल टाइल्स, आइडेंटिकल शेप. सारे के सारे आइडेंटिकल शेप जो हैं वो स्क्वायर टाइल होने चाहिए. और दूसरा कंडीशन क्या है? साइज मस्ट बी मैक्सिमम. और तीसरा कंडीशन क्या है? नो स्पेस शुड बी लेफ्ट. नो स्पेस शुड बी लेफ्ट. मैं यहां से हट रहा हूं, आप जरा फोकस करो इस प्रॉब्लम पे, एकदम ध्यान से देखो. बहुत छोटा सा प्रॉब्लम मैंने दिया है. मैंने क्या कहा? दिस इज अ रेक्टेंगुलर प्लॉट 90 feet by 75 feet. It has to be tiled and tiles must be spiral shaped and have identical shape also. They all should be identical in shape. उसके बाद क्या लिखा? Shape and size must be maximum. इसका साइज जो है, जो स्क्वायर का जो साइज आएगा, जो स्क्वायरल टाइल का जो साइज आएगा वो मैक्सिमम होना है. और क्या कहता है? नो स्पेस मस्ट बी लेफ्ट. कोई भी स्पेस यहां का लेफ्ट नहीं होना चाहिए. अब आए हम मेन मुद्दे पे. सब लोग समझ रहे होंगे ना? हम फिर से कहेंगे आप सबों को, जितना कुछ दिमाग है सब दो नंबर पे कंसंट्रेट करो, 75 एंड 90. नाउ जहन में तो आ रहा होगा कि अरे 5x5 का टाइल भी लगा देंगे ना तो सब कुछ हो जाएगा. फिर आ रहा होगा जहन में, अरे 10x10 का टाइल करेंगे तो यहां तो हो जाएगा, ठीक, लेकिन यहां जो है बच जाएगा आधा टाइल. टाइल को तो काटना है नहीं, टाइल को काटना अलाउड नहीं है. गॉट इट ना? होल नंबर ऑफ टाइल्स यहां पे लगने हैं. कंडीशंस में लिखना होगा, अलग से लिख लेना, जो दिया मैं समझ रहे होगे तुम प्रॉब्लम. इसके लिए हम क्या करेंगे? हम अभी 10 देख रहे हैं, 15 देख रहे हैं, 20 देख रहे हैं, 5 देख रहे हैं. व्हाट वी आर डूइंग? वी आर लुकिंग एट द फैक्टर्स ऑफ 90 एज वेल एज 75. सो वी विल हैव टू सी कॉमन फैक्टर. कॉमन फैक्टर, ये येलो से जो है वो सॉल्यूशन पार्ट है. कॉमन फैक्टर ऑफ 75 एंड 90 आपको देखना होगा. इसके फैक्टर्स मैं लिख रहा हूं यहां पे आपकी मदद से. 1 है, उसके बाद क्या होगा? 3 होगा ना. सब फैक्टर्स है. फैक्टर्स वो नंबर होते हैं जो इसको डिवाइड कर पाते हैं. 3 के बाद क्या होगा बताओ? 5 होगा. 5 के बाद क्या होना चाहिए बताओ जरा? 5 15 जा. और भी कुछ हो रहा है क्या? 7 8 9 10 नहीं होगा ऑफ कोर्स. तो क्या होगा बताओ जरा? 15. 15 होगा. यू आर वेरी करेक्ट. 15 के बाद और कुछ लग रहा है? 25 होगा. 25. और उसके बाद डायरेक्टली 75 हो रहा है. अब समझो, यहां भी हमको फैक्टर्स लिखने हैं. मैं लिख रहा हूं आपकी मदद से. बताना, 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 5 हुआ. इसके बाद 6 होगा ना? यस. 10. उसके बाद 8 9 9 9. होगा ना? 9 होगा. Yes. देन 10 भी है. 10. उसके बाद क्या है? 10 9 जा 90. कुछ 8 12. नहीं, कुछ 7 जा होता है, नहीं, कुछ 6 जा होता है. यस, 15 6 जा 90. कितने 12 सर. क्या होता है? सर 12. वो 12 होगा. 12 कैसे होगा मैम? 12 से डिविजिबल 12 नहीं होगा. ऑल राइट. 15 6 जा 90. और कौन सा 5 जा 5 से इसको डिवाइड करो, कितना आता है? 18 आता है. अब 4 से डिवाइड करो इसको, होगा क्या? नहीं होगा. अब 3 से डिवाइड करो, 30 आया. फिर 2 से डिवाइड करो, कितना आया? 45. फिर 1 से डिवाइड करो, 90. ये सारे इसके फैक्टर्स हैं. अब तुमको देखना है इसमें क्या रखना है? स्क्वायरल टाइल का मैक्सिमम साइज. इट मींस मैक्सिमम साइज, इट मींस मैक्सिमम पॉसिबल कॉमन नंबर लेने हैं. देखो तो जरा कौन सा आता है? 75 आ रहा है? नहीं आ रहा है. 25 आ रहा है? नहीं आ रहा है. 15 आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है. यही है हमारा आंसर. 15 में बटेगा, 15 by 15 के स्क्वायरल टाइल में.
हिंट क्या है? 15 इत्थे भी जाना है, 15 उत्थे भी आना है, तभी जाके ये स्क्वायरल टाइल होगा, क्योंकि दोनों साइड इक्वल होना है ना, इस साइड से भी इस साइड से भी, तो यही है। Yes, sir. अब बात आया यहाँ पे 1 2 3 4 5 एंड 6, और इधर आया 1 2 3 4 एंड 5। अब ध्यान से देखो, यहां से ये गया 15 जा, और ये गया 15 जा, 15 6 जा, और ये 15 5 जा। अब तुमको समझ में आ गया होगा व्हाट इज द थिंग, नंबर ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइल्स तुमको ढूंढना है। नंबर ऑफ टाइल्स कितना होगा, यही इस क्वेश्चन का आंसर है। एंड द आंसर इज व्हाट, 1 2 3 4 5 6 into 1 2 3 4 5, 6 into 5 30 tile is the answer of the 30. question. So the answer is what, 75 divided by 15 into 90 divided by 15 बराबर 5 into 6 बराबर 30 tiles। आंसर आ गया। नंबर ऑफ टाइल्स यही क्वेश्चन था, हाउ मेनी टाइल्स you will be needing, number of tiles needed will be equal to 30। यही कॉन्सेप्ट है तुम्हारा हाईएस्ट, ये क्या हुआ, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, दिस इज HCF, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो मेन जो है एलसीएम के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, HCF का बहुत कम आता है, बट HCF का एक एग्जाम्पल के थ्रू मैंने आपको दिया यहां पर ये क्वेश्चन। शैल आई गो अहेड? सर एक Yes, मिनट लिख रहा हूँ। ऑलराइट, इसको समझ के करना, मैं फिर बोल रहा हूं, सबसे बड़ा इसमें हिंट है कि स्क्वायरल टाइल, यानी एक्स एक्सिस से भी 15 जाने हैं, वाई एक्सिस से भी 15, या मैक्सिमम वो नंबर जाना है, यानी फैक्टर्स को देखना है, वो कौन सा कॉमन फैक्टर है जो 90 में भी डिवाइड करता है और 75 में भी डिवाइड करता है। मैक्सिमम वो आया 15, तो 15 उत्थे भी आएगा इत्थे भी आएगा, यानी 15/15 का टाइल आ गया, और यही मैक्सिमम साइज टाइल होगा। अब आपको टाइल का नंबर पता करना है, कोई बात नहीं, आराम से हो जाएगा, 5 into 6 equal to 30। आर यू डन विद इट? यस सर। चलो, नाउ प्लीज सी ओवर हियर, यूनिट डिजिट मेथड। फाइंडिंग यूनिट डिजिट चैप्टर का नाम है, छोटा सा चैप्टर है, ध्यान से देखना। 2 to the power 1 का यूनिट डिजिट 2 होता है, 2 to the power 2 का क्या होता है, 4 होता है, 2 to the power 3 का क्या होता है, 8 होता है, तो 8 हुआ यूनिट डिजिट, 2 to the power 4 का 16 होता है, तो 6 होता है यूनिट डिजिट। फिर ये रिपीट होता जाता है, यानी 2 to the power 5 होगा तो फिर से क्या होगा, यही रेपिटेशन, 2 होगा, 2 to the power 6 होगा तो 4 होगा, डॉट 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 डॉट, यानी हर एक 4 के बाद रिपीट करता है। समझ में आ गया? इसी तरीके से 3 to the power 1 का हमेशा 3 होगा, 3 to the power 2 का हमेशा 9 होगा, 3 to the power 4 का हमेशा जो है 3 to the power 3 कितना होगा, 27, यानी यूनिट डिजिट क्या आया, 7। और 3 to the power 4 क्या होता है, 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, 9 तिया 27, 27 तिया क्या होता है, 81, 27 3 जा 81। नाउ 81 का क्या आया, 1, फिर 1 से मल्टीप्लाई करो 3 को, क्या आ गया जरा बताओ, बोलो जरा, 3 ही आ गया, यानी रेपिटेशन फिर से शुरू है। समझ में आ रहा है? यानी ये 4 के बाद रेपिटेशन चल रहा है। समझ में आया? आगे चलते हैं, यूनिट डिजिट कर रहे हैं। 4 to the power 1 हमेशा 4 देगा, 4 to the power 2 16, यानी कि 6 देगा, 4 to the power 3 क्या देगा, ऑफ कोर्स 64 देगा, 64 4 to the power 4 हमेशा क्या देगा, फिर से 256 क्या बात है, तो 6 256 देगा, तो ये 4 6 हो रहा है, ये हर एक 4 के बाद हो रहा है, हमेशा याद रखना।
इसके बाद आता है 5 का। 5 में कुछ भी कर लो, हमेशा यूनिट डिजिट 5 ही होगा। 5 ही एम आएगा। आई करेक्ट और नॉट? Yes, 6 sir. में हमेशा और हमेशा क्या होगा? 6 ही होगा, है ना? अब देखो Yes, sir. इसमें क्या होगा, फिर वही है। 7 टू द पावर 1 7 होता है, 7 टू द पावर 2 9 होता है, 7 टू द पावर 3 क्या होता है? खुद से सोचो, 343 होता है ना, तो 3 हुआ ना। Yes, yes, 343. और 7 टू द पावर 4 में फिर से 1 आ जाएगा, और फिर से 7 टू द पावर 5 क्या होगा? 7 होगा, 9 होगा, फिर 3 होगा, फिर 1 होगा, रिपीट होता चला जाएगा। यानी 4 के बाद रिपीट होता है, मैक्सिमम 4 तक रिपीटेशन जाता है और कुछ नहीं। इसी तरह 8 का देख सकते हो, 9 का देख सकते हो, 10 का तो देखने का कोई जरूरत नहीं है। 8 का क्या होता है? 8 टू द पावर 1 8 आएगा, 8 टू द पावर 2 क्या होगा? 4 आएगा, 64। 8 टू द पावर 3 क्या होगा? 2 आएगा, 8 टू द पावर 4 8 टू जा 16 यानी 6 आएगा, फिर से वही आ जाएगा। रेपिटेशन यहीं से चल रहा है। अब बच गया 9 का, हम लोग 9 का कर रहे हैं। 9 का क्या है? 9 टू द पावर 1 हमेशा 9 होगा, 9191। हमेशा 1 होगा, यही रेपिटेशन चलता जाएगा, जो तुम समझ भी रहे होगे। 10 का बताने की जरूरत नहीं थी। तो ये था 1 से लेके 9 तक का जो रिपीटिशंस होता है, उस तरह की बातें। ये सब स्क्रीनशॉट लेना। अभी जो हम करवाने जा रहे हैं, बोर्ड को देखो और हमको फटाफट उसका आंसर दो। सर ये मोस्टली 4 के बाद रिपीट ही होंगे ऑलवेज, मतलब मोस्ट केसेस में। मोस्ट केसेस में 4 के बाद रिपीट हो रहे हैं, 5 और 6 में हर एक में सेम रह रहा है, और 2 रिपीट कब कब हो रहा है? 9 के केस में हो रहा है, और किसके केस में? कोई और आया था ना, तो और कहीं आया था। 4 9 का और 4 का हमेशा 2 के बाद रिपीट होता है। वेरी इजिली इट हैज बीन सेड। फर्स्ट क्वेश्चन विद डिफरेंट कलर। फाइंड यूनिट डिजिट in 554 4 to the power 54 into 237 4 to the power 78। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द यूनिट डिजिट इन 364 4 to the power 10 plus 65 4 to the power 7। वेरी सिंपल। एक में प्लस है, एक में इंटू है। सबको पता है मल्टीप्लाई होता है तो लास्ट का 2 डिजिट मल्टीप्लाई करके हमेशा क्या देगा? यूनिट डिजिट। लास्ट का 2 डिजिट ऐड होके क्या देगा? यूनिट डिजिट। नथिंग एल्स इज देयर, और कुछ नहीं, बस रेपिटेशन ध्यान में रखना है। तो बताओ, अब हम कर रहे हैं ग्रीन से। फटाफट देखना, ये 4 पे कॉन्सेंट्रेट करो। 4 का रेपिटेशन क्या कहता है? अगर ऑड नंबर है तो क्या होगा यूनिट डिजिट? 4, और अगर इवन नंबर है तो क्या होगा यूनिट डिजिट? 6। Even. एम आई करेक्ट और नॉट? यहां पे 4 का देखो, इसको देखना ही नहीं है, इसको देखना ही नहीं है, इसको देखना नहीं है, इसको देखना नहीं है, ओनली कॉन्सेंट्रेट ऑन द यूनिट डिजिट। 4 का पावर इवन है तो ये क्या होगा जरा बताओ? इवन क्या होता है? 6, तो दिस इज द 6 इनटू। अब 7 का देखो, तो 7 का क्या है भाई? हर एक 4 के बाद रिपीट होता है। एम आई करेक्ट और नॉट? यानी पावर को 4 से डिवाइड करना है। आई एम डिवाइडिंग इट हियर। 78 को 4 से डिवाइड किया तो 4 1 जा 4, फिर 3 8, 4 9 जा 36, व्हाट इज रिमेनिंग? 2 इज रिमेनिंग। एम आई करेक्ट और नॉट? हाँ या ना? Sir. Yes, बोलो ना। ये एक Two- बार बता। अच्छा ठीक, मैं फिर से बताता हूं। मैंने 4 से इसलिए किया क्योंकि 1 2 3 4, फिर 5 6 7 8, फिर 9 10 11 12, ऐसे करके अगर पावर बढ़ेगा 4 4 का रेपिटेशन होता है, तो क्यों ना 4 के ग्रुपिंग में तोड़ ले। 4 के ग्रुपिंग में 19 के बाद 2 भी आया, रिमाइंडर 2 आया, सो दिस इज द आंसर। ये जो है ये आंसर हो गया। एम आई Sir, करेक्ट और नॉट? यस। एक्सक्यूज मी सर, जो हाँ। आपने 6 लिखा है, ये 54 को 4 से डिवाइड करके आया उसका नहीं नंबर मैम, देखिए। 54 को बस 2 से डिवाइड किया, क्योंकि हर एक 2 जो है वो आपको दे रहा है पैटर्न, लेकिन 7 के केस में 4 दे रहा है पैटर्न, हर एक 4 दे रहा है पैटर्न। और 2 के 2 केस से में, कैसे किया डिवाइड? तो मैं 2 के केस में इसलिए नहीं डिवाइड किया क्योंकि ये तो बहुत आसान है ना। अगर ऑड नंबर आ रहा है तो क्या होगा? 4। अगर इवन नंबर आ रहा है तो होगा क्या? 6। फिर से ऑड आया तो 4, फिर से इवन आया तो 6। ऑड इवन, ठीक है, ऑड ठीक है, इवन, दो ठीक है। दो 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 का ग्रुपिंग, नथिंग एल्स इज देयर। ये यस देखो सर। 7 का जो इसको किया तो रिमाइंडर 2 आया, इसका मतलब आंसर क्या हुआ? 9। तो अब बताओ 9 6 या क्या होता है? 54। तो हम 5 नहीं लिखेंगे, 4 लिखेंगे, और वही होगा हमारा आंसर। 4 इज द आंसर।
और आप सबके लिए क्वेश्चन ये रहा, और है टाइम केवल 1 मिनट का। इसका यूनिट डिजिट अब इसी प्रिंसिपल पे निकालो फटाफट। सर ये आंसर 4 कैसे आया? कौन सा आंसर 4 इस तरह से आया क्योंकि 554 टू दी पावर 54 तो अपना यूनिट डिजिट दे दिया 6 दे दिया ना, और 237 होल टू दी पावर 78 अपना यूनिट डिजिट दे दिया है। तो केवल यूनिट डिजिट जो आता है उसको हम मल्टीप्लाई करके फिर से उसका यूनिट डिजिट ही आंसर में लिख देते हैं, वही हमारा सर आंसर। 5 आया नेक्स्ट का। नेक्स्ट का तो अभी हम बात नहीं कर रहे थे, अभी हम इस क्वेश्चन का बात कर रहे थे जो हमने अभी किया। नहीं, उसका आंसर 5 है क्या? अगर कहीं कैलकुलेशन में मैंने मिस्टेक किया है बता सकते हैं। वन आया सर यूनिट डिजिट। ऑल राइट, बाकी सब लोगों को करने दो प्लीज। सर मेरा भी 1 आया है। क्या बात है, ओके। Is it done? Shall I start? यस सर। All right. 57242 whole to the power 9 into 7 into 5 into 3 into 1, इसका यूनिट डिजिट आपको निकालना है, क्या होगा? एंड दिस इज द क्वेश्चन ऑफ यूपीएससी सी सैट 2023। उसके पहले इसका आंसर जो सब बोल रहे हैं वो जरा देख लेते हैं। 4 है तो 4 के केस में क्या होता है, इवन अगर है तो क्या होगा, 6 होगा। सो दिस इज 6 प्लस 5 के केस में हमेशा और हमेशा क्या आएगा, 5 ही आएगा। तो आंसर क्या आया, 1 इज द यूनिट डिजिट। क्या आप सबों का ये आंसर आया था? एम आई करेक्ट? यस सर। यस सर। तो अब जो ऊपर सीसैट 2023 का सवाल लिखा है, दैट इज 57242 होल टू द पावर 9 इंटू 7 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 1। अब इसको यूनिट डिजिट इसका निकालना है। तो बस हिंट यही दे रहा हूं कि जो यूनिट डिजिट 2 है ना नीचे, उसके अलावा जितने भी नंबर्स हैं, 4 डिजिट नंबर, 5 डिजिट नंबर, 7 डिजिट नंबर, कुछ भी हो, वो सब रेडंडेंट हैं, उनका कोई काम नहीं। जब भी यूनिट डिजिट की बात आए कॉन्सेंट्रेट करो यूनिट डिजिट पे। आपका समय ऑलरेडी शुरू हो चुका है। 4 से डिवाइड करो ऊपर वाले नंबर को, ऊपर वाले नंबर को 4 से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर आ रहा है फटाफट देखो बोर्ड पे आंसर है और दो मुझे। 30 सेकेंड का प्रॉब्लम है। सर 4। ओके, बाकी सबको करने दो।
Shall I start? Shall I start? With your permission, can I rub ये white वाला चीज? और why should I rub? थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूं. Move. थोड़ा छोटा कर दिया ताकि जगह बने. Alright? बस. Now I am going to do it with another color. कौन सा कलर करूं? Blue. Shall I start, guys? आपको बस देखना है. Question is, पावर क्या है? 9 into 7 into 5 into 3 into 1 when divided by 4 रिमाइंडर क्या देगा? Am I correct or not? I am asking all of you. कमल, कोमल, जो है सब बताओ. क्वेश्चन सर इज, मुझे दोबारा पूछना है क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन दोबारा पूछना है? बोलो. सेकंड वाला बता दो, मुझे समझ नहीं आया। कौन वाला? सेकंड वाला? यस। सेकंड वाला बहुत इजी है. देखो जरा, 4 यूनिट डिजिट लो. 4 का पावर इवन क्या आता है जरा बताओ. यूनिट डिजिट इज 6. एम आई करेक्ट और नॉट? हाँ या ना? बोलो ना. यस। हाँ, तो उसके बाद बोलो 5 का क्या होता है? 5 का हमेशा और हमेशा क्या है? 5 ही है. लिख दिया है मैंने. तो यस। लिख दिया. 6 और 5 को जोड़ोगे तो क्या आएगा? 11. 11 का एक यूनिट डिजिट ले लिया. 1 इज द आंसर. सर ये मैं ये पूछ रही थी, ये 2 मतलब ऊपर 2 डिजिट है इसका, और हमने 4 की 2 लिया है पावर ऊपर 2 है. पावर में। हाँ 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 हाँ. 4 का ये हमेशा कंफ्यूज कर रहा है तुम लोग को. ये लो मिटा दिया मैं. हर 2 के बाद यस रिपीट कर रहा है. यस 4 का. यस 4 सर, अब का सही हर है। 2 के बाद रिपीट कर रहा है. जो 2 के बाद रिपीट करे उसमें कुछ नहीं है. 9 का 2 के बाद रिपीट करता है. 4 का 2 के बाद रिपीट करता है. इसमें कुछ नहीं है. ऑड होगा तो 9, इवन होगा तो 1, ऑड होगा तो 4, इवन होगा तो 6. नथिंग एल्स इज देयर. इसमें कुछ है ही नहीं. यस सर, अब आ गया समझ। ऑल राइट. अब देखो ध्यान से, ये 2 थैंक है. यू। 2 है ना. और ये पूरा का पूरा पावर है. तो इस पावर को 4 से डिवाइड इसलिए करेंगे क्योंकि पैटर्न क्या है? 4 4 का पैटर्न है. नाउ आपकी मदद से मैं डिवाइड करने जा रहा हूं. ये रहा डिवीजन. क्या आपको याद आया? कुछ हमने पढ़ा था रिमाइंडर थ्योरम में. समझ में आया? बस रिमाइंडर पता करना है. 4 से डिवाइड करते जाओ. कितना आएगा? 1 इधर आएगा, 3 इधर आएगा, 1 इधर आएगा, 3 इधर आएगा, 1. टोटल कितना आया? 9. समझ में आया कि नहीं आया? कोई तो बोलो. यस सर। डिवाइडेड बाय 4. यस सर। रिमाइंडर क्या आया? रिमाइंडर इज कमिंग आउट टू बी 1. तो हमारा आंसर क्या हुआ? ये 1. 2 टू द पावर 1 कहां गया? नीचे करो. 2 to the power 1. Yes. 2 to the power 1. This is the answer. 2 is the answer of the question. All right. Am I correct? हाँ या ना? Am I correct? कोमल समझ में आ गया? कमल समझ में आ गया? ऑल ऑफ यू समझ में आया? 57242 होल टू द पावर इतना था. तो बस यूनिट डिजिट का देखना है. 4 4 के पैटर्न के बाद क्या आ रहा है रिमाइंडर. पहला तो है आपने किया होगा 9 इंटू 7 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 1. टोटल किया होगा. टोटल को डिवाइड किया होगा 4 से. आपका रिमाइंडर आया होगा 1. तो ये हमारा आंसर हुआ. हमने क्या किया? डायरेक्टली डिवाइड किया 4 से. रिमाइंडर थ्योरम का हेल्प लेके यहाँ पे 4 2 जा 8 तो 1 आया रिमाइंडर. यहाँ पे 4 1 जा 4 तो 3 आया रिमाइंडर. यहाँ 1 आया रिमाइंडर. यहाँ 3 आया, यहाँ 1 आया. सबको मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि रिमाइंडर थ्योरम में रिमाइंडर मल्टीप्लाई करना होता है. 9 आया, 9 को फिर से 4 किया तो रिमाइंडर 1 आया. तो 1 रिमाइंडर आया तो हमारा ये आंसर. 2 is the answer of the question. Am I correct? यस सर। Am I correct? दृष्टि समझ में आया? हाँ जी सर। All right. Shall I go ahead? Shall I go ahead? दृष्टि समझ में आया चीजें? यस सर।
सर। चलो, ऑल ऑफ यू नाउ प्लीज सी ओवर हियर। एक डिफरेंट रेल में जा रहे हैं। 3 क्वेश्चन हम बनाएंगे आपकी मदद से। पहला है 5:40 पे एंगल बिटवीन आवर एंड मिनट हैंड बताइए। दूसरा क्वेश्चन 11:50 पे एंगल बताना है। एंड तीसरा क्वेश्चन है कि 4 से 5 बजे के बीच में फाइंड टाइम व्हेन एंगल बिटवीन आवर एंड मिनट हैंड इज 90 डिग्री एंगल। इस 3 क्वेश्चन को हम सॉल्व करने जा रहे हैं। उसके पहले मैं कमल को बोलूंगा ऑनलाइन आओ और फॉर्मूला बताओ। बस फॉर्मूला बताओ और कुछ नहीं करना है। टेल मी द फॉर्मूला। 30H प्लस m/2 माइनस 6m था और 6m माइनस 30H प्लस m/2 ब्रैकेट में है। होगा कि नहीं होगा? होगा। यस सर। यहां H ये है और M ये है। अब हमको देखना है ये फॉर्मूला लगेगा कि ये फॉर्मूला लगेगा। कोई बात नहीं है, हम लोग अलग अलग देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल 5 अगर इधर करोगे तो 530 जा 150 होता है और यहाँ पे 40 × 6 बहुत ज्यादा होता है, इसलिए हमारा ये वाला फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा इधर। ये भी करोगे तो माइनस में आंसर आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस को प्लस में कर लेना, कोई भी फॉर्मूला अप्लाई करो। लेकिन हमारी समझ ये कही कि 6 × m, जरा बताओ 6m क्या होगा? 40 माइनस अब क्या होगा? ये है h और ये है m, जल्दी बताओ ना। माइनस 30 × 5 प्लस m/2, 40/2 ये होगा। एम आई करेक्ट? हम इसको सॉल्व करेंगे। 240 माइनस 150 माइनस 20 बराबर 70 डिग्री आ गया। क्या सबको ये आंसर समझ में आया? हाँ या ना? यस सर। कुछ भी नहीं किया है मैंने, फॉर्मूला फिटिंग किया है, नथिंग एल्स इज देयर। 6 × 40 माइनस 30 × 5 प्लस 40/2 फॉर्मूला में पुट किया है। देखा है कि राइट वाला फॉर्मूला यहां पे एप्लीकेबल है। अगर आप लेफ्ट वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करते तो आपका आंसर आता -70 डिग्री, तो उसको +70 डिग्री कर लेना, हो गया। अब जरा कोई मुझे बताएगा कि क्या हमको इसमें भी वो वाला फॉर्मूला अप्लाई करना होगा? यस, क्योंकि 50 × 6 बहुत ज्यादा बड़ा होता है। 6 × 50 करो या वो बात बराबर है। 6 × 50 माइनस 30 × 11 प्लस 50/2 ये है हमारा आंसर। एम आई करेक्ट और नॉट? सॉरी, इसमें हम गलत कर दिए, पहला वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करना पड़ता। कोई बात नहीं, कर रहे हैं। देखो जरा क्या हो रहा है। 300 माइनस 330 माइनस 25 इक्वल टू क्या आ रहा है, जरा देखते हैं। देखना सब कैलकुलेशन मेरा करेक्ट है कि नहीं। 3 यहां पे -30 है और यहां पे -25, तो इट इज कमिंग आउट टू बी -55। इसको ऑटोमेटिकली तुम क्या कर लेना, 55 डिग्री। दिस इज द आंसर ऑफ द स्टोरी। देख लेना कैलकुलेशन करेक्ट है या नहीं, हाँ या ना, जल्दी देख। प्लीज सी वेदर द कैलकुलेशन वाज करेक्ट और नॉट। अगर नहीं करेक्ट है तो तुम बताओ। इस कंफ्यूजन में बिल्कुल मत रहना कि हमने पहला वाला क्यों नहीं फॉर्मूला इस्तेमाल किया। आप पहला वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करते तो आपका आंसर डायरेक्टली आता 55 डिग्री। हमने दूसरा वाला किया इसलिए -55 आया, तो उसको कोई बात नहीं, आप पॉजिटिव कर दो 55, दैट इज आंसर ऑफ द थिंग। क्या समझ में आया? यस सर। सिर्फ फॉर्मूला फिटिंग है, नथिंग एल्स इज देयर। और सबसे मेन क्वेश्चन क्या है? दूसरा वाला, जिसके लिए बहुत बड़ा जगह मैंने यहां पे मुकर्रर कर रखा है।
शैल आई स्टार्ट? Yes, सब लोग sir. इसका अगर जरूरत पड़े तो स्क्रीनशॉट ले लेंगे। हम जो है ग्रीन से बनाएंगे ये वाला क्वेश्चन। सबसे पहले ये देखो, 4 से 5 बजे के बीच में ये रहा 3, ये रहा 4, ये रहा 5, ये रहा 6। सब लोग ध्यान से देखो, 4 से 5 बजे के बीच में एक टाइम कैसा होगा जब 90 डिग्री होगा, एक टाइम ऐसा होगा। एम आई करेक्ट और नॉट? ये रहा 90 डिग्री एंगल। और दूसरा टाइम कैसा होगा जरा बताओ? दूसरा टाइम ऐसा भी होगा। समझ में आया कि नहीं आया? दो टाइम होगा। जरा देखो ध्यान से कि क्या मैंने करेक्ट किया, हाँ या ना, बताओ जरा। एक बार मिनट एंगल इत्थे होगा और एक बार मिनट एंगल उत्थे हो सकता है। मुझे तो लगता है बिल्कुल होगा। आप अपना विजुअलाइजेशन करो। एम आई करेक्ट और नॉट? बोलो जरा। कहता है कि 4 से 5 बजे के बीच में फाइंड द टाइम व्हेन एंगल बिटवीन आवर एंड मिनट हैंड इज 90 डिग्री। क्या मैं करेक्ट कह रहा हूं कि नहीं? कोई Yes, Yes, कुछ sir. नहीं बोल रहा है। मैंने सिंपल बोला कि विजुअलाइज करो कि तुम्हारा जो Yes, घड़ी sir. उसमें 4 और 5 बजे के बीच में अगर घंटे की सुई है तो क्या मिनट की सुई आगे यानी इत्थे होती है और उत्थे भी होती है? बिल्कुल होती है। तो अगर इत्थे हुई तो टाइम कुछ और होगा 90 डिग्री एंगल में, उत्थे हुई तो टाइम एंगल कुछ और होगा। बात कहां से आई? एक ही जगह से आई। दो फार्मूला की वजह से आया। समझ में आया? मिनट हैंड अगर इत्थे रहेगा तो एक फार्मूला लगेगा, मिनट हैंड उत्थे होगा तो दूसरा फार्मूला लगेगा। समझ में आया? तो कहने का मतलब हमने मान लिया टाइम। लेट टाइम इज व्हाट? 4 बजकर और m1 मिनट हुआ, और दूसरा माना 4 बजकर m2 मिनट हुआ। हम ग्रीन से कर रहे हैं। ये केस 1 है सपोज। तो केस 1 है तो हम फॉर्मूला में पुट करेंगे ना। फॉर्मूला में पुट कर रहे हैं 30h प्लस m/2 माइनस 6m बराबर कितना? 90 डिग्री। मैं फॉर्मूला में पुट कर रहा हूं। h क्या है? ये 30 इंटू 4 प्लस m1/2 माइनस 6m1 इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब बताओ 120 माइनस 90 इधर आएगा तो होगा, एम आई करेक्ट और नॉट? और उधर जाएगा तो क्या होगा? ये आप कैलकुलेशन करोगे तो आएगा 11/2m। 5.5m है ना माइनस में, उधर जाके प्लस 5.5m हो जाएगा। 5.5m यही होता है। एम आई करेक्ट और नॉट? m1। तो अब बात आई 30 इज इक्वल टू 11/2m1। तो m1 की वैल्यू क्या आई है जरा बताओ? m1 इज इक्वल टू 60/11 आ गया है कि 4 बजकर बोलना जरा। 60/11 होता कितना है? 5 मिनट और कितना? 11 5 या 55 देन 5/11 पीएम पे ये वाला टाइम होगा। एम आई करेक्ट? और दूसरा वाला टाइम में दूसरा वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करो 6m2 माइनस 30 इंटू 4 प्लस m2/2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब इसको सॉल्व करो। 6m2 माइनस 120 माइनस m2/2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब इस दोनों को करोगे तो 11m2/2 इज इक्वल टू, ये उधर गया तो क्या हुआ? 210 डिग्री। तो m2 की वैल्यू आ गई है 420 डिवाइडेड बाई 11 इज इक्वल टू व्हाट? 11 3 जा 33 और उधर 9 बचा, 9 0। तो 11 8 जा 88 और 2/11। दूसरा टाइम क्या आया है? 4 बजकर बोलना जरा 38 मिक्स फ्रैक्शन 2/11 पीएम आ चुका है। दोनों आंसर ध्यान से देखिए। अब समझ में आ गया होगा कि क्लॉक्स में जो सर फॉर्मूला लिखा रहते वो बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। 3 आपको क्वेश्चन ऐसा करवाए हैं जो यूपीएससी में पूछा गया है या इस प्रारूप का क्वेश्चन हूबहू यूपीएससी में आया है। ध्यान से देखो थर्ड क्वेश्चन को, स्क्रीनशॉट लो और बताओ मुझे कि क्या समझ में आया कि नहीं। कुछ किया ही नहीं है मैंने, बस पहले फॉर्मूला और दूसरे फॉर्मूला में इस्तेमाल किया है 4 बजकर m1 मिनट को और 4 बजकर m2 मिनट को। यस, एनी क्वेरी? सर ये आंसर कैसे किया चेंज, ये बताना। मैंने बहुत अच्छे से बताया कि तुम्हारी घड़ी में जाके आज रात में देखना, 4 जब बजेगा, 4 और 5 के बीच में जब घंटे की सुई होगी तो देखना 90 डिग्री एंगल लगभग इत्थे भी बनता है एक और उत्थे भी बनता है। यानी 5 मिनट
कि थोड़ा सा आगे भी बनेगा, 4:05 होगा तब भी बनेगा 90 डिग्री एंगल, और 4:38 लगभग होगा तब भी बनेगा 90 डिग्री एंगल। तो इत्थे उत्थे का हिसाब किताब ये है कि तुम M1 और M2 दो मान ली, क्योंकि 4:00 होगा तो 4 तो फिक्स है। तो एक केस को M1 मान लो, एक केस को M2 मान लो, एक में पहला फॉर्मूला इस्तेमाल करो, दूसरे में दूसरा फॉर्मूला इस्तेमाल करो, इक्वेशन पे सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। Am I correct? Please take the screenshot and tell me. कमल, समझ में आया? आप एक बार अच्छे से इसको देखना, विजुअलाइज करना, बार बार सर बोल। मैं ना ये कह रही थी कि जो आंसर निकाला है ना वो कैसे कन्वर्ट करा उसके अंदर कुछ नहीं करा, 60 डिवाइडेड बाई फ्रैक्शन में। 11। ये देखो मैं कर रहा हूं, ये उजले में कर रहा हूं, व्हाइट में कर रहा हूं, सॉरी ब्लू में कर रहा हूं। 60/11 को कर रहा हूं कन्वर्ट। ये देखो 60 को डिवाइड किया 11 से, 11 5 जा 55, रिमाइंडर क्या आया 5। तो हम 60/11 को क्या लिखेंगे जरा बताओ? इसको लिख सकते हैं ठीक है 5 मिक्स फ्रैक्शन 5/11। उसी तरीके से थैंक वो यू। आया था 38 मिक्स फ्रैक्शन 2/11। एम आई करेक्ट? प्लीज टेक द यस सर। स्क्रीनशॉट, लास्ट स्लाइड में जाना है मुझे। प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट, मुझे एक लास्ट स्लाइड में जाना है। अगर हो गया तो बताओ, मैं जाऊं? यस सर। Yes. मैंने इक्वेशंस के बारे में एक चीज आपको बहुत पहले बताई थी कि इक्वेशंस में आपको किस तरह से सॉल्व करना है। मैं उसमें जो एक एग्जाम्पल है वो अभी देके जा रहा हूं, जो पहले भी बोला था और अभी भी समझा रहा हूं कि x और y का कोई भी चीज एग्जाम्पल दे, जैसे 3 पेन का प्लस 2 बुक का दाम दिया हुआ है 200 रुपया, और अगर मान लो 2 पेन का और 3 बुक का अगर दाम दिया हुआ है लगभग कितना 270 रुपीज सपोज, तो आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते हो। सॉल्व क्या करना है? सपोज मान लो P की वैल्यू निकालनी है, तो क्या करना होगा? आपको ये PP कट करना होगा। समझ में आया? तो आप क्या करोगे, इसमें इंटू 2 कर दो इसका कोएफिशिएंट, और ऊपर से इस 3 को इधर मल्टीप्लाई कर दो। आ क्या गया? 6P प्लस 4B इज इक्वल टू 400, और इधर क्या आ गया? 6P प्लस 9B इज इक्वल टू व्हाट? इसको करोगे तो क्या आएगा? 810। एम आई करेक्ट? तो अब देखो ध्यान से, क्या 6P कट सकता है, हाँ या ना बताओ मुझे? 6P कट सकता है ना? यस हाँ सर या उनके ना? साइन चेंज कर गए। हाँ। तो अब कहने का मतलब अब ये कट सकता है, माइनस 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 हमने माइनस कर दिया, देन इट इज कमिंग आउट टू बी -5B इज इक्वल टू व्हाट? 410 रुपए माइनस में। तो माइनस माइनस कट गया, तो B इज इक्वल टू हर एक बुक का दाम निकल गया 410 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 82 रुपीज। हाँ क्या बात है, 82 रुपए। And the P will be 12. ऑल राइट। नाउ कहने का मतलब है ऐसा और क्या क्वेश्चन पूछा गया है यूपीएससी में, ध्यान से सुनो। ऐसे तो बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, एक क्वेश्चन मैं यहां पे बता रहा हूं जिसके बारे में कभी ना कभी चर्चा की होगी। 2 डिजिट नंबर है AB, रिवर्स कर दिया अब हो गया BA, इन दोनों का डिफरेंस आ रहा है 27। ये दोनों 2 डिजिट नंबर है, यानी 2 डिजिट नंबर AB को रिवर्स किया गया तो BA हुआ, और दोनों का डिफरेंस आया क्या? डिफरेंस आया 27। बताना है हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर। ऑलराइट, हमेशा याद रखना 23 बोलते हो ना, 20 + 3 बोलते हो, 2 3 को बोलते हो, इसका मतलब क्या है? 2 × 10 + 3 है, तो इसकी वैल्यू आएगी 10A + B, और ये आएगा 10B + A। ये वैल्यू होता है 2 डिजिट नंबर का। फॉर एग्जाम्पल 23 को हम लिखेंगे क्या? 2 × 10 + 3। अब जब इसको माइनस करने जाएंगे तो हमको क्या आएगा जरा बताओ? हमको आएगा यहां माइनस यहां माइनस, तो क्या आएगा जरा बताओ?
9a माइनस 9b, यानी कि 9 इंटू a माइनस b इज इक्वल टू क्या, 27। तो सबको पता चल गया होगा कि a माइनस b बराबर क्या आएगा, 3 आएगा। बस यही पता करना था। डिफरेंस ऑफ द डिजिट आ गया क्या, 3, और आपका सवाल ये बन चुका है। ठीक है, देखना जरा ध्यान से। अगर ए बी का डिफरेंस आ रहा है 3, तो ए बी तो 2 डिजिट नंबर है। अब जरा बताओ ए बी क्या क्या हो सकता है। ये रहा ए बी, अगर 2 डिजिट नंबर है तो ये लो, डिफरेंस क्या है, 3 का है। तो ए को मान लो 3, तो ये हुआ 0, बट ये तो ले नहीं सकते हो क्योंकि इसको रिवर्स करने के बाद 2 डिजिट नंबर है। एम आई करेक्ट? तो शुरुआत करोगे आप 41 से, फिर 52 से, फिर 63 से, फिर 74 से, फिर 85 से, फिर 96 से। टोटल कितने नंबर्स पॉसिबल हैं, 6 नंबर हमारे आंसर हो गए। ये सवाल था। अब इससे, ठीक है, जो सीसैट का पूछा गया था 2017 का सवाल है। अब देखो क्वेश्चन अच्छे से देख लो। 2 डिजिट नंबर बोला गया था ए बी है, 2 डिजिट नंबर रिवर्स करने के बाद बी ए आ रहा है, और दोनों का डिफरेंस 27 है। तो बताना था हाउ मेनी सच नंबर्स आर पॉसिबल। ये पूरा पार्ट आपका क्वेश्चन का था, बाकी सब पार्ट सॉल्यूशन का था। दिस वाज क्वेश्चन एंड दिस ऑल पार्ट इज सॉल्यूशन। सर ये एक और बार रिपीट करोगे, समझ नहीं आया। बस मैं ये बता रहा हूं कि आपको ए बी कोई भी नंबर है 23 है ना, 2 डिजिट नंबर। इसको आप लिखोगे 2 इंटू 10 प्लस 3, लिखोगे कि नहीं लिखोगे, बताओ जरा। लिखोगे ना? उसी यस सर। तरीके से ए बी को हमने 10a प्लस बी लिखा, इसकी वैल्यू होती है ये। और 2 डिजिट नंबर जब रिवर्स करेंगे तो उसको पलट दो, तो बी ए हुआ, वो हुआ 10b प्लस a। अब दोनों का डिफरेंस आ रहा है 27, तो माइनस कर दिए, नीचे माइनस माइनस आ गया, तो 10a माइनस a करोगे तो 9a आएगा, और ऊपर b है और नीचे माइनस 10b है, तो आएगा वैल्यू माइनस 9b। इसको सॉल्व करने के बाद आप देख लेना a माइनस बी बराबर 3 आता है, यानी दोनों डिजिट का जो डिफरेंस है वो आ रहा है क्या, वो आ रहा है आपका 3 आ रहा है। सो दीज आर द नंबर्स। ऑलराइट, एम आई करेक्ट? कुछ तो बोलो। ठीक है, यस सर। चलो, मेरी तरफ से आप सबों को हैप्पी दिवाली। अब बात करो मुझसे। क्या वादा करते हो कि क्वेश्चंस मुझे भर भर के आएंगे, डाउट आप लोगों की तरफ से? ऑल द चैप्टर्स ऑफ क्वांट, ऑल द चैप्टर्स ऑफ रीजनिंग जितना पढ़ाया वो एक्सटेंडेड था। कंडीशंस ग्रुपिंग से लेके बहुत सारा छोटा छोटा पार्ट ऐसा पढ़ाया जो एकदम जो है थोड़ा लीक से हटके भी था, फिर भी मैंने पढ़ाया है। तो क्या मैं ऐसा मान के चलूं कि अभी जो टीएमएच बनाओगे या जो भी बुक बना रहे हो वो बनाओगे तो डाउट्स मुझे मिलेगा? मेरा मेल आईडी मैं लिख रहा हूं और नंबर लिख रहा हूं। आई नीड्स डाउट्स, I need doubts, and I need doubt both on mail as well as phone number. Whenever it is required, I will be there to help you out. Rest आप शुभम सर को दो और चीजें मुझे मिल जाएंगी। Am I correct? Are you getting me or not? कुछ तो बोलो, this is the last sir. moment. Yes, Or- sir. So please Yes. note. Thank you, sir. It's thank you, ma'am. It's amritampersonal@gmail.com. @gmail.com. Or this is this number. Always understand that if I have just completed the CSAT portion, एक आपका पूरा का पूरा क्या आएगा, कंप्लीट लेंथ टेस्ट। ऑलराइट, 80 क्वेश्चन सेट जो है वो आपके पास आने वाला है, और उसके अलावे जो है जो भी चीज नीडेड होगा वो ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से की जाएगी। नेक्स्ट थिंग, डाउट्स आई वुड बी नीडिंग, एंड आई विश यू ऑल थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल टू बी देयर विथ मी सिंस होल टाइम। डे 1 से डे लास्ट तक सारे लोग जो हैं वो अपना 100% यहाँ पे दिए हैं। तो आई गिव थैंक्स टू ऑल द पीपल, ऑल द 18-20 पीपल दैट हैव कम अलोंग अप टिल नाउ। और उसके साथ साथ जो लोग ऑनलाइन भी कंसिस्टेंट बने रहे हैं, हालांकि उनसे उनकी कंसिस्टेंटी उतनी कंसिस्टेंट नहीं रही है जितना कि ऑफलाइन का रहा है, फिर भी उन सबों को मैं दाद देता हूं। लेकिन यहां बैठे जो 18%, 20% है जो हमेशा हर दिन आए हैं, मैं उनको थैंक यू कह रहा हूं।
और दूसरी बात हैप्पी दिवाली। एंड थर्ड थिंग, आई नीड डाउट्स, ऑलराइट, डाउट लाओ, मैं उसको सॉल्व आउट करूंगा। आई विल बी देयर इन दिल्ली and will be there to just solve all sort of queries as far as the thing is concerned. हम पहले दिन भी बताए थे कि एप्टीट्यूड को लेके घबराना नहीं है। आपका जो भी क्वेश्चन पूछ रहा है, बनाने का तरीका होता है। सबसे स्मार्ट किड वो होगा जो मैथ्स में ज्यादा तेज ना हो, लॉजिकल रीजनिंग में भी ज्यादा तेज ना हो, और इंग्लिश में भी ज्यादा तेज ना हो, लेकिन तेज बच्चे से वो मार्क्स ज्यादा स्कोर करके सीसैट पे लाएगा। क्यों? स्मार्टनेस। वो मैं सबसे पहले ही बोला था। अपने जो डिफिकल्ट वाला पार्ट है उसको स्ट्रॉन्ग करो और इजी इजी क्वेश्चन चुनने की आदत डालो, प्रैक्टिस करो एज मेनी क्वेश्चंस एज पॉसिबल। उस 80 क्वेश्चन में से अगर 40 क्वेश्चन क्वांट का आ रहा है तो उसमें से 15 से 20 इजी क्वेश्चन सबसे पहले तुमको करना है चुन चुन कर। 10 क्वेश्चन आए उसमें लॉजिकल रीजनिंग में, 10 में से 8 इजी इजी क्वेश्चन अगर आते हैं तो वो जल्दी करना है। इंग्लिश रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में जो छोटा दिख रहा है और अच्छा दिख रहा है, बड़ा भी हो कोई बात नहीं, बट पैराग्राफ जो अच्छा दिख रहा है उसको सबसे पहले करने का है। ठीक है? I rest my case. I have done enough for you all. All right? All the part have been done by me over here. इसके अलावा जो इत्तू इत्तू सा जो चीज अभी आपके जहन में आएगा ना, वो भी ड्रिप्स एंड ड्रैप्स में आपको मिल चुका है। थैंक यू अ लॉट फॉर बीइंग विथ मी। आई विश यू गुड बाय ओवर हियर। थैंक यू। हैप्पी दिवाली। थैंक यू सर। टेक केयर, गुड नाइट। एकदम आराम से जाओ, चिल मारो, सब कुछ रिवाइज करो। हम यहाँ मौजूद हैं। और सेकंड थिंग क्या है, डाउट्स मुझे चाहिए। ठीक है? अभी एकदम लगातार तुम्हारा रहा है टेन्योर, अभी दिमाग का स्तर एकदम अलग है। बस फेयर कॉपी एकदम अच्छे से करना। दूसरी बात, रिवाइज बढ़िया से करना। बहुत टाइम भी मिला है आपको बीच में। आप तो 2 दिन का मुझसे रम मांग रहे थे कि 2 डेज तो मिले बिल्कुल बिल्कुल, और मैं तो बोला भी था कि मैं गारंटी इसका लेता हूं कि 2 दिन एटलीस्ट मिले। तो बट आपको 1 हफ्ते मिला है, तो मैं चाहूंगा कि आप सीसैट पूरा फिनिश करो। Thank you a lot for being with me. Take care. Goodbye. थैंक यू सर। हैप्पी दिवाली सर। Thank you. सर दिवाली। Thank you. Thank you to all of you.